Good morning, everybody. Today we'll discuss about the conversion from decimal to octadecimal conversion. Suppose we have a some digit number. If the number is having less than 8, then the octadecimal will be same. And if it is greater, then in that case, it should be divided by the 8. And the remainder, that means you can say as the remainder we keep, and after the division, then we will again divide it by the 8 and again keep its division unless until we get the number less than or equal to 7. Then remainder is written from the reverse order, that is the octadecimal number, which is equal to the decimal number. Let us show with the one example. Suppose here is the number is 165 is given. In that case, we will divide the 8 by the 8. We see that we obtain the 5. Then we will divide the 20 again by the 8. 4 is left. Then the 2. The after solving it, we get the remainder, and we will take from the bottom to the top. That means 2, 4, 5 is the octadecimal number, the conversion from the decimal to octadecimal. Another example is given as 658, which is divided by the 8. Here we obtain the 2. 62 is the answer. As the 62 is greater than 8, so it has to be divided by the 8. Then we obtain the 10 and the remainder is 2. Then we will divide 8 by the 2, as 2 is lesser than the 8, so the number will be written from the bottom to the top, 2222, that is 658 is the decimal number, which is converted into the octadecimal number, that is 2222 power 8, which show that this is the octadecimal. Another example I can show, 88. 88 is divided by 8, that got the 11, remainder is 3, then 1 right from the bottom, so 1, it should be written as 1 3 130 is the octadecimal number, so this is equivalent. So another example I can say that 540 again divided by the, as it is greater than 7, so we divide by 8, the remainder is 4, that is the answer is 67. Now 67 is divided by the 8, that is 8, and the remainder is 3, then the 1, so we obtain the answer is 1 3 in writing in from the reverse order, that is given by 1034 is the octadecimal number that's obtaining. Now we take that the 29 is greater than 7, so we will divide with the 8, so with the 3 number, and the remainder is 5. Now as 3 is lesser than 8, so answer is 3, so the answer is 35. So one has to remember that how to do it. Another example is given as 350, so we will divide with the 8, so 83 is the answer, and the remainder is 6. 5 is again with the 5 times you divide, and remainder is 3, so the answer is 536. So answer is 536 is the answer in octadecimal. Another example is given as 775, which is divided by the 8, so the quotient, that means the answer is 96, remainder is 7, so 96 is again divided by the 8, so we obtain the answer is 12, remainder is 0, so 12 is divided by 8, that is by the remainder is 3, and this is 1 is the last less than 7, so the that means the answer will be 140807 is the octadecimal number. Now another example like 158, again we will divide with the 8,
The remainder is 6. 19 is answer. 19 we will divide by the 8, we obtain 2. So answer is remainder is 3 and 2 is left. So the answer will be 236 is the real answer for the octadecimal. आज हम कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टाडेसिमल पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्टाडेसिमल नंबर की जो नंबर जिसमें 8 ही डिजिट नंबर तक होंगे 0 to 7, अगर जैसे आप कन्वर्जन दिखा रखा है डेसिमल में कोई नंबर है जैसे आपका दे रखा है, अगर वो 7 से बड़ा है 7 से छोटा है तो वही ऑक्टाडेसिमल नंबर होगा। और अगर वो ग्रेटर है, ग्रेटर यानी बड़ा है उससे, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, रिमाइंडर को लिख देंगे एक साइड, फिर उसे डिवाइड करेंगे, फिर उसका आंसर जो रिमाइंडर बचेगा उसे एक साइड लिख देंगे। ऐसे करते रहेंगे जब तक कि जो आंसर है वो लेस देन या 7 के बराबर आ जाए। फिर उल्टे ऑर्डर में लिख देंगे उसे, ऑर्डर में यानी जिस तरीके से हमने उसे मिले हैं, और हमको क्या मिलेगा, ये कह सकते हैं आप, हमको जो है ऑक्टाडेसिमल नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 165 है, 165 को 8 से हम डिवाइड करेंगे, तो जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स आएगा, और आंसर जो है इसका हमारा बचेगा 2, रिमाइंडर हमारा जो है 2 बचेगा। फिर आप उसे फिर से 20 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जा रहा है और रिमाइंडर जो बचा 4। तो अब 2 जो है वो 8 से छोटा है, तो नंबर क्या हम बॉटम से यानी स्टार्टिंग जो लास्ट वाला बचा है उसे लिखेंगे 245, या ऑक्टाडेसिमल नंबर है। इस तरीके से इसका आंसर लिखा जाएगा। दूसरा एग्जांपल आपका दे रखा है 658। 658 को फिर से हम 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो जो है 7 से बड़ा है, तो जब हम डिवाइड करेंगे 682 आएगा हमारा आंसर, और रिमाइंडर जो है 2 बचा। अब हम इससे फिर से डिवाइड करेंगे 80 को, तो वो बचा 10 और 2 आंसर इसका रिमाइंडर बचा। 10 को फिर से डिवाइड करेंगे, 2 बचा, 2। तो अब 2 जो है वो छोटा है 8 से, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो आएगा 2222 बेस में 8, यानी ऑक्टाडेसिमल नंबर है ये। और ये जो लिखेंगे हम 658 को बेस में जो है 10 लिखेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा ये डेसिमल में है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, 88 रखा है, 88 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमको 11 मिलेगा, रिमाइंडर 0 है। फिर से 11 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा और 1 बचा। 1 जो है वो छोटा है तो 7 मतलब 8 से, तो अब जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा इसका 0130, 0130, यानी 130 इज द ऑक्टाडेसिमल नंबर। 130 जो है आपका आंसर आएगा इसमें, 130 जो है आंसर ऑक्टाडेसिमल में। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 540 दे रखा है, तो हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा और हमारा 67 आएगा। 67 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। फिर 8 बचा तो 8 से डिवाइड करा 1 टाइम और 0। अब इसे आंसर क्या आएगा, आंसर हम बॉटम से लेंगे, तो आंसर आ रहा है 1034, ये ऑक्टाडेसिमल नंबर इसका आ जाएगा। अब 29 है, 29 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमें बचेगा 3 से, और फिर से हम अब 3 जो है ये छोटा आ गया, तो आंसर जो है 35 आंसर इसका बचेगा। एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें 350 दे रखा है, 350 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 43 टाइम जाएगा, 6 बचेगा। और 43 8 से बड़ा है तो फिर से डिवाइड करेंगे 5, तो आंसर क्या बचेगा, जो ऑक्टाडेसिमल नंबर आएगा 536 आंसर इसका आएगा। 536 इज द आंसर। अनदर एग्जाम्पल इज यहाँ पे 775 दे रखा है, यानी 775, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन बचेगा 96 आएगा हमारा, और रिमाइंडर जो है वो हमारा जो आएगा वो बचेगा 7। अब ये 96 को फिर से डिवाइड करेंगे 8 से, तो इसका रिमाइंडर बचा 0। फिर उसका जो है अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें बचेगा 12 को हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 आंसर, और रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 4। तो आंसर जो आपका 1 जो है 8 से छोटा है, तो अब लिखेंगे हम 1407, ये ऑक्टाडेसिमल नंबर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं,
158 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 19 और रिमाइंडर जो बचेगा वो 6 बचेगा। अभी 19 को फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 टाइम्स है और रिमाइंडर बचे 2। अब 2 जो है वो 8 से स्मॉलर है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वही इसका आंसर आएगा, यानी कि 236 इज द ऑक्टाडेसिमल नंबर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको करते चले जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।